Today we will have the discussion on the topic that is oral hypoglycemic agents. It is a type of diabetic management. Here is the classification of oral hypoglycemic agents. First is secretagogues sulfonylureas. Under that it is further divided into three: first generation, second generation, and meglitinides. Second is sensitizers, biogenides, and thiazolidinediones. Third classification is alpha glucosidase inhibitors. Fourth is peptide analogues, incretin mimetic. Under that is glucagon like peptide analogues and agonists, gastric inhibitory peptide, and DPP4 inhibitors, amylin analogues. Here, so these are the classifications which we are going to deal on the oral hypoglycemic agents. Next is chemical classifications. First is sulfonylureas. Under that is subdivided into first generation and second generation. First generation contains some drugs, that is tolbutamide, chlorpropamide, acetohexamide, tolazamide. Second generation is glibenclamide, glipizide, gliclazide, glimepiride. And next is biguanides. Under that is fenformine, metformin. Next, meglitinide analogues, repaglinide and neticlinide. Thiazolidinediones contains rosiglitazone and pioglitazone. Next, alpha glucosidase inhibitors. Under that is acarbose and miglitol. These are the chemical classifications of oral hypoglycemic agents. Next, site of action of oral hypoglycemics. तो यहाँ पे जो है ये हेडिंग का मतलब ये है कि जितने भी हम अभी तक क्लासिफिकेशंस देखें तो ये ड्रग्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं, मीन्स कौन से साइट्स पे जाके ये एक्ट करते हैं. तो अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स जो है ये आपके कार्बोहाइड्रेट लोड, मीन्स इट एब्जॉर्ब्स इन द स्टमक. नेक्स्ट, मेटफॉर्मिन thiazolidinediones acts on the liver which where it increases the glucose production. Next, sulfonylureas meglitinides acts on the pancreas where the insulin secretion is impaired. Next, metformin thiazolidinediones acts on the skeletal muscles where it decreases the glucose uptake and utilization. Next, thiazolidinediones acts on the adipose tissue. So these are the sites, that is stomach, liver, pancreas, skeletal muscle and adipose tissue. तो ये sites है जहाँ पे आपके oral hypoglycemic drugs act होते हैं. So this is the mechanism of action of sulfonylureas. When the person is given sulfonylurea, it gets depolarized and after that it combines with the calcium channels and then it gets concentrated and it releases insulin which is helpful in the glucose maintenance. तो जो sulfonylureas है ये depolarize होने के बाद ये क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म होने के बाद ये क्या करता है, कैल्शियम को कंसंट्रेट करके इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है जो कि ग्लूकोज के मेंटेनेंस में हेल्पफुल है. Next, here is the types of sulfonylureas. It is divided into generation wise. First is tolbutamide. Its duration is 6 to 12 hours. Chlorpropamide, it is also 60 minutes. Next, acetohexamide, it is for 12 to 24 hours. Tolazamide, it is for 12 to 24 hours. So these are the durations of these first generation drugs. Next is second generation is glipizide, that is 10 to 16 hours. Glibenclamide, that is 18 to 24 hours, and glimepiride, that is 18 to 24 hours. Next is the pharmacokinetics. Administered just before or along with meal. जो सल्फोनिलूरिया ड्रग है ये आपको मील के जस्ट बिफोर जैसे फूड को सामने रखना है और उनको ये सल्फोनिलूरिया ड्रग्स देना है. तो
और विथ अलॉन्ग विथ फूड, तो फूड के चलते भी आप फूड के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट मॉडरेटली प्रोटीन बाउंड, तो इसमें 70 to 90% प्रोटीन बाउंड है, मेटाबलाइज्ड इन द लीवर में मेटाबलाइजेशन होता है, पर कुछ सल्फोनिलयूरिस जो है ये मेटाबलाइट्स में एक्टिव फॉर्म में वर्क करते हैं। नेक्स्ट वो लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो सल्फोनिलयूरिस है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाते, फ्यू एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन, तो ये जो कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो एज एग्जैक्ट वैसे जैसे आप देते हो वैसे अनचेंज फॉर्म में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट आर द एडवर्स इफेक्ट्स। फर्स्ट इज़ हाइपोग्लाइसेमिया, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स आर डेंजरस, तो ये जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है जो कि हम डेली वंस से डेली जो देते हैं वो थोड़ी डेंजरस है। अगर इसमें आप डाइट प्रॉपरली नहीं दे रहे हो या फिर पर्सन को कोई रीनल या फिर हेपेटिक प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी पर्सन को प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अदर ड्रग्स के साथ जैसे कोई अल्कोहल एंटाब्यूज ड्रग्स दे रहे हो या फिर कुछ और अदर ड्रग्स दे रहे हो उसके साथ अगर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दे रहे हैं तो ये डेंजरस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज GIT डिस्टर्बेंस, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक डिस्टर्बेंस, वेट गेन, द पर्सन में हैव अ वेट गेन, एलर्जी दैट इज जॉन्डिस विद क्लोरप्रोमामाइड, तो एलर्जी होने का चांस रहता है, थायराइड डिस्फंक्शन भी होने के चांस रहता है अगर टोलब्यूटामाइड रिड्यूसेस आयोडीन अपटेक, क्योंकि जब टोलब्यूटामाइड चलता है तो ये क्या करता है आयोडीन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने नहीं देता, जिसके कारण थायराइड डिस्फंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज ड्रग इंट्रैक्शन मीन्स जब आप डायबिटिक मैनेजमेंट चल रहा है ओरल हाइपोग्लाइसेमी के साथ कोई अदर ड्रग्स दे रहे हैं जैसे कि पहला एंटाब्यूज लाइक इफेक्ट विथ एल्कोहल, तो अगर स्पेशली विथ क्लोरप्रोमामाइड, तो जब डायबिटिक मैनेजमेंट चल रहा है उसी टाइम अगर एंटाब्यूज ड्रग्स भी चल रहे हैं तो जो ड्रग्स डायबिटीज़ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो उसका एक्शन इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। नेक्स्ट हाईली प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स, सैलिसाइलेट इंक्रीज दी कंसनट्रेशन, तो सैलिसाइलेट जो है उसके कंसनट्रेशन को इंक्रीज करता है इंसुलिन के कंसनट्रेशन को, एंजाइम इनिबिटर्स सच एज क्रिमेटिडिन एंड क्लोरामफेनिकोल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो एंजाइम इनिबिटर्स जो क्या करते हैं ये भी एक्शन जो ड्यूरेशन है नॉर्मली जितने ड्रग्स के सारे सबको एक्सीड करता है मीन्स इंक्रीज करता है। नेक्स्ट एंजाइम इंड्यूसर्स डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो एंजाइम इंड्यूसर्स जब अगर चलता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के साथ तो इसका ड्यूरेशन भी कम होने लगता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, पर्सन अगर क्रोनिक अल्कोहलिज्म है तो उस टाइम पे भी ड्रग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लूप एंड थायजाइड डाययूरेटिक्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिक्रीज इंसुलिन एंड एंटागोनिस्ट इनडायरेक्टली, ये सारे ड्रग्स अगर चल रहे हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के साथ साथ जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, लूप, थायजाइड डाययूरेटिक्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इंसुलिन का जो एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स मास्क हाइपोग्लाइसेमिक, तो बीटा एड्रेनर्जिक भी उसके एक्शन को स्टॉप कर देता है। Next we will deal with the drugs that is meglitinide. फर्स्ट पॉइंट इज सिक्रेशन एनहांसर, तो मैग्लिटिनाइड जो है ये सिक्रेशन एनहांसर है मीन्स इंसुलिन को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म सिमिलर टू सल्फोनिलयूरिस बट बाइंडिंग में बी एट डिफरेंट साइट और रिसेप्टर, तो मैग्लिटिनाइड का एक्शन भी सल्फोनिलयूरिस जैसा ही सेम रहता है लेकिन इसका जो साइट है जो एक्शन ऑफ जहाँ पे ये वर्क करना चाहिए उसका जो रिसेप्टर्स है ये डिफरेंट जगह रहेगा। रैपिड ऑनसेट, तो ये फास्ट वर्क करेगा सो इसलिए इसको इमीडिएटली देना है फूड के साथ या फिर फूड देने से 1-2 सेकेंड पहले ही आपको देना है। मेटाबलाइज्ड इन लीवर सुटेबल टू कंट्रोल पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसेमिया अनकंट्रोलेबल विद डाइट एंड एक्सरसाइज। पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसेमिया मीन्स इंसुलिन का जो सिक्रेशन है डिनर या लंच के बाद तुरंत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए आपको मैग्लिटिनाइड ड्रग पहले देना है। नेक्स्ट सब्सटीट्यूट फॉर सल्फोनिलयूरिया इन केस ऑफ एलर्जी, अगर सल्फोनिल यूरिया के कारण अगर पर्सन को एलर्जी हो रहा है तो उसके रिप्लेसमेंट में आप मैग्लिटिनाइड ड्रग्स और एल्स ग्लिनाइड ड्रग्स दे सकते हैं।
So यहाँ पे डोज है रेपाग्लिनाइड इज गिवन 0.25 to 0.4 mg. नेक्स्ट नेटग्लिनाइड इज गिवन 60 to 120 mg. Next, metformin. It increases uptake and utilization of glucose by skeletal muscle, which reduces the insulin resistance. तो ये जब metformin और else you can say bugonides, तो ये ड्रग्स जब देते हैं तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है. Insulin of hepatic inhibition of hepatic and renal gluconeogenesis, which decrease hepatic glucose output and प्रीडोमिनेंटली. तो अगर जो पर्सन को हेपेटिक और कोई रीनल प्रॉब्लम है तो ऐसे पर्सनस को अवॉइड करना है ओरल मेटफॉर्मिन ड्रग्स नहीं देना, क्योंकि ये उनके में वर्क नहीं करेगा. स्लो डाउन द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है उसमें ग्लूकोज जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं. Next, promote insulin binding to its receptor. Reduction in plasma glucagon level does not stimulate insulin, does not reduce blood sugar in normal person. अगर metformin normal person को भी देते हो आप तो उसका blood sugar level कम नहीं होता है और ये इंसुलिन को भी स्टिमुलेट नहीं करेगा. Lowers LDL, VLDL and elevates HDL. तो LDL, VLDL जो है लिपिड्स का टाइप्स है, इसको ये डिक्रीज करेगा, पर जो HDL है इसको क्या करेगा, एलिवेट करता है. नेक्स्ट विल सी दी बिगवेट्स मेटफॉर्मिन, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स है ये. पार्शियली एब्जॉर्ब, पार्शियली मेटाबलाइज्ड. ड्यूरेशन इज 8 आवर टेकन विथ फूड. तो ये फूड के साथ देना है और इसका ड्यूरेशन है 8 आवर. डोज है 500 mg BD में बी इंक्रीज. मेटफॉर्मिन ओनली ओरल एंटी डायबिटिक अप्रूव्ड इन प्रेगनेंसी. तो ये आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मदर को दे सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स है लैक्टिक एसिडोसिस एंड मैल absorption. These are the side effects and pharmacokinetics of metformin. Here is the mechanism of action, how the metformin acts. It first directly acts on the liver and muscles, then it activates the AMPK means activated protein kinase. जैसे ही metformin ड्रग देते हो आप लीवर में और मसल्स में ये डिवाइड होके प्रोटीन काइनेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो जैसे ये लीवर में एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ डिक्रीज इन ACC एक्टिविटी, SREBB1 एक्सप्रेशन एंड ग्लूकोजेनेसिस. उसके बाद ये SREBB एक्शन क्या होता है, ये जीन एक्सप्रेशन लिपोजेनिक एंजाइम्स में एक्ट करता है. एक्ट करने के बाद फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है. ये जैसे ही फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो फैटी लीवर जो है वो डिक्रीज होगा और हेपेटिक इंसुलिन भी, हेपेटिक इंसुलिन क्या है ये इंक्रीज हो जाता है. वैसे ही जैसे मसल्स में AMP का एक्टिवेशन होता है उसमें ग्लूकोज अपटेक मीन्स जो ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो जाता है. सो हियर इज द पैरोक्सीसोम प्रोलिफरेट एक्टिवेटेड रिसेप्टर. ये 2 टाइप्स है आपका, TG लोअरिंग एंड HDL रेजिंग, ग्लूकोज लोअरिंग एंड इंसुलिन सेंसिटाइजिंग. तो नेक्स्ट हम ड्रग्स देखेंगे वो है थायाजोलिडिनेडियोन्स. इट हैज़ 2 टाइप्स. जो थायाजोलिडिनेडियोन्स ड्रग्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है. वो है पैरोक्सीसोम प्रोलिफरेटस एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा एंड गामा. तो ये PPAR अल्फा एंड PPAR गामा में इंडिकेटेड है. PPAR अल्फा जो है वो TG को डिक्रीज़ करेगा पर HDL को इंक्रीज़ करेगा और ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं. थायाजोलिडिनेडियोन्स प्लस पैरोक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा जो है ये क्या है, इंसुलिन के सिक्रेशन को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, मीन्स रेस्पॉन्सिव जीन्स में इसको एक्टिवेट करेगा. उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करेगा और एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल एंड फैट इज इम्प्रूव. तो जो भी मसल्स में फैट में जो इंसुलिन एंटर करने का तरीका रहेगा वो नॉर्मली इम्प्रूव हो जाएगा. This slide is not important. Next we'll see the drug that is pioglitazone. Pioglitazone under that is PPAR alpha and PPAR gamma activity absorbed within 2 hours of ingestion. तो ये 2 घंटे में ही एब्जॉर्ब करना शुरू करता है. फूड में भी डिले अपटेक बट टोटली बायोअवेलेबिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड. तो ये 100% नहीं दे सकता है इसका बायोअवेलेबिलिटी. मेटाबलाइज टू एक्टिव मेटाबलाइट्स. Estrogen containing oral contraceptive metabolized by the same macrosomal enzymes.
तो एस्ट्रोजन कंटेनिंग जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ये इसके मेटाबोलाइजेशन में इंटरफेयर करेगा वंस अ डे बिफोर मील्स। तो पायोग्लिटाजोन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए इसको 15 to 30 mg आपको देना है पर ओडी देना है आपको वंस अ डे, मे बी कम्बाइंड विथ मेटफॉर्मिन सल्फोनिलियोरिस एंड इंसुलिन। तो ये कम्बाइंड में भी आप दे सकते हो मेटफॉर्मिन सल्फोनिलियोरिस यूरियस और इंसुलिन के साथ। नेक्स्ट ड्रग इज रोसिग्लेटाजोन, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली ऑन इट, ये जो है ये किस पे एक्ट करता है डायरेक्टली, ये पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर्स एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा पे एक्ट करता है और ये रैपिड एब्जॉर्प्शन जो है ये फास्ट होता है और हाई प्रोटीन बाउंड है। अदर प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर, तो ये सिमिलर है काइनेटिक्स यूज़ के जैसे। साइड इफ़ेक्ट्स है इसके फ्लूइड रिटेंशन, तो ये फ्लूइड रिटेंशन के कारण वेट गेन हो सकता है, अनीमिया, हेडेक, माइल्जिया मीन्स मसल्स पेन, नॉट एडवाइजेबल इन हेपेटिक एंड सीवियस कॉम्प्लिकेशन। जो पर्सन्स को हेपेटिक प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉब्लम है, ऐसे पर्सन को ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लिवर फंक्शन टेस्ट एडवाइजेबल, तो हमेशा जब भी रोसिग्लेटाजोन ड्रग्स अगर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उससे पहले आपको लिवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेसेस, स्टार्च, ओलिगोसैकेराइड्स एंड डीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये है आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है, स्टार्च, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। पैंक्रेटिक अल्फा अमाइलेज, उसके अंदर ड्रग है आपके सुक्रोज, माल्टोज, ग्लाइको अमाइलेज एंड डेक्सट्रोज। अल्फा ग्लाइकोसाइडेसेस, lactose, acarbose, miglitol, competitive inhibitors, miglitol 6 times more potent against alpha amylase, decrease postprandial digestion and absorption of starch and disaccharides। तो अल्फा ग्लूकोसाइड्स, ये ओवरऑल पॉइंट ये है कि अल्फा ग्लूकोसाइड्स जो है ये मिग्लिटोल, इसके अंदर मिग्लिटोल आता है जो कि 6 टाइम्स ज़्यादा एक्टिवेट है अगेंस्ट अल्फा अमाइलेज। जो अल्फा अमाइलेज इसके आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये उससे ज़्यादा मोर एक्टिव फॉर्म में वर्क करेगा। और ये पोस्ट प्रैंडियल मीन्स लंच के बाद अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इसको क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है और एब्जॉर्प्शन, स्टार्च और डाइसैकेराइड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या हेल्प करेगा, दैट इज़ अल्फा ग्लूकोसाइडेसेस। नेक्स्ट डोज है अल्फा ग्लूकोसाइडेसिस, आपको डोज देना है 25 to 100 mg, इज टेकन एट बिगनिंग ऑफ ईच मील। तो जैसे आप फूड लेने के लिए रहते हैं या फिर कोई पर्सन जो है फूड उनको खाना रहता है, जस्ट फ्यू सेकेंड्स बिफोर यू हैव टू गिव दिस ड्रग। मिनिमली एब्जॉर्ब, प्रोड्यूसेस फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड लूज स्टूल। तो इसके साइड इफ़ेक्ट ये है कि अल्फा ग्लूकोसाइडेसिस के तो गैस फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पर्सन डिस्कम्फर्ट फील करेगा और स्टूल जो है वो लूज फॉर्म में फॉर्म होता है। Next we will see the peptide analogs, that is incretin mimetics. Incretins are insulin secretagogues. incretin जो है ये क्या है, इंसुलिन सिक्रेशन में हेल्प करता है। और GLP-1 ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1, इट इज़ लीराग्लुटाइड, GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड बाइंड टू GLP रिसेप्टर एंड इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। तो ये जो इंक्रेटिन मिमेटिक्स है ये सारे GLP-1 GLP पे एक्ट करके इंसुलिन सिक्रेशन में या फिर इंसुलिन रिलीज में हेल्प करता है। एक्सेनाटाइड GLP-1 agonist is resistance to degradation by DPP and extend its half life। तो इंक्रेटिन जो है ये GLP पे एक्ट करता है, किस चीज़ के लिए एक्ट करेगा, इंसुलिन सिक्रेशन के लिए एक्ट करेगा। लेकिन ये जब DPP पे एक्ट करता है तो इसका है इंसुलिन जो है इसका एक्शन रिड्यूस हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और इसका हाफ लाइफ भी इंक्रीज होगा। वेट लॉस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आर दी साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज़ द डाइपेप्टाइडाइल पेप्टिडेज 4, ये इसका नाम है डाइपेप्टाइडाइल पेप्टिडेज 4, डिग्रेड्स GLP-1, विल्डाग्लिप्टिन, स्टिग्लाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन। DPP-4 inhibitors prevents the action of DPP-4, weight neutral and increase risk of infection and headache। तो जो डाइपेप्टाइडाइल पेप्टिडेज जो है ये वेट न्यूट्रल है, मीन्स वेट जो है इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ भी नहीं होगा, लेकिन इसमें इन्फेक्शन और हेडेक होने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर दी रिस्क फैक्टर्स और एज यू कैन सी दी साइड इफेक्ट्स ऑफ डाइपेप्टाइडाइल एंड पेप्टिडेज 4।
The slide is not important. Next we'll see the insulin and incretin. तो इंसुलिन एंड इंक्रेटिन क्या करता है? इंक्रेटिन जो है ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज को, और जैसे ये रिलीज होता है ये क्या करता है? लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लोअर करेगा। तो फर्स्ट क्या है, जब आप DPP-4 इनिबिटर्स ये ड्रग्स जब आप देते हो ये क्या करेगा? DPP एंजाइम को इंक्रीज करेगा। एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद ये इंक्रेटिन GLP-1 को एक्टिवेट करेगा, जो कि 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज और इनिबिट ग्लूकोगन रिलीज। तो ये दोनों में रिलीज होने के बाद इट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट इज दी अमाइलिन एनालॉग्स। अमाइलिन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। अमाइलिन जो है वो पैंक्रियाटिक लैंगरेंस के बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है, जो कि स्लोज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड सप्रेस ग्लूकागन। तो ये जो है गैस्ट्रिक एम्प्टी को स्लो करेगा, मीन्स उसके प्रोसेस डाइजेशन प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो करेगा और ग्लूकागन को सप्रेस करता है। नेक्स्ट प्रामलिनटेन इज द अमाइलिन एनालॉग, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जस्ट बिफोर मील एंड इट रेड्यूसेस पोस्ट प्राइंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये जो अमेलिन एनालॉग्स, अमेलिन ड्रग जो है वो आपको सबक्यूटेनियसली देना है जस्ट बिफोर मील, मील से पहले आपको देना है, और ये पोस्ट प्राइंडियल हाइपरग्लाइसेमिया में रिड्यूस करता है। मीन्स अगर आप लंच के बाद या फिर डिनर के बाद और सडनली ग्लूकोज इंक्रीज हो जा रहे हैं पर्सन के बॉडी में, तो ये डिक्रीज करेगा। नॉजिया एंड वॉमिटिंग आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस अमेलिन एनालॉग्स। थैंक यू।